Now 5 people have joined us, and I think कि now I'm visible as well as audible. क्या आवाज मेरी जा रही है? या गुड इवनिंग अंजलि जी, आवाज मेरी जा रही है? या या ओके ओके ओके, दैट्स गुड. There are certain points which I want to share with you, and some important thing regarding today's class. That is Far from the Madding Crowd, जो एक नॉवेल है Far from the Madding Crowd. In what way that novel is important, and how you can understand that novel. Second thing कि which type of questions are asked. As far as matter is concerned to, या that is related to questions and answers को लेकर के हमने कुछ पहले भी बात किया था. But when we talk about Far from the Madding Crowd, always remember that कि first we should start this lecture with what we should start this lecture with the title of the novel, कि title of the novel जो है वो किस वे में या कैसे सिग्निफिकेंट है. सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि जो टाइटल ऑफ द नॉवेल ऑफ फ्रॉम द वाइडिंग क्राउड, व्हाट डज इट रिफर. देन रिमेंबर दैट कि जो टाइटल ऑफ द नॉवेल है, रिमेंबर दैट कि दिस पार्टिकुलर टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम थॉमस ग्रेस. एक पोएट थे जो कि जिन्होंने एलजी लिखा था, दैट वाज एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. तो इससे एक रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज कि द नॉवेल जो ये है आपका, दिस पार्टिकुलर नॉवेल और इसका जो टाइटल है नॉवेल का, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम थॉमस ग्रेस पोयम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च. दिस इज द फर्स्ट एंड कॉमन पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन. आपको एक बेसिक पॉइंट है जो आपको क्या करना है, आपको अपने उसमें ध्यान में रखना है. तो व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल्ड यू कि एक एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है जो हर आदमी को पता होना चाहिए related to the title कि the title of this novel has been taken from Thomas Gree's poem Elegy written in a country churchyard. Second point कि what is the significance of the title, why title is important, why Hardy has taken this title from that poem, that is very important point. Remember that when you talk about Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard, you find what you find, the people, life, manner, attitude of what of the person, yeah, means poor villagers, if I use the word कि great talks about the poor villagers who are no more in this world, who are just lying in their narrow cell in their graves. वहां पर किसके बारे में बात की गई, पुअर विलेजर्स के बारे में बात की गई है. परहैप्स हार्डी ने वही इमेज लिया हुआ था, और हार्डी ये चीज बताना चाहते हैं कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो मैडिंग क्राउड, जो पागलों की भीड़ है. पागलों का मतलब ऐसा नहीं कि सिनिक या समथिंग, यू कैन से कि मैड पीपल मीन्स द पीपल हु आर लिविंग इन सिटी एरिया, they don't have time, they don't have ultimately to think what is right, what is wrong, they are passing the materialistic life. तो हार्डी ने अपनी लाइफ में और अपनी नॉवेल में दोनों जगहों पर रीजनल, अगर मैं बात कहूँ कि रीजनल, जो एक पार्टिकुलर रीजन वेसेक्स है उसको लेकर के उनको उन्होंने बात किया, और यह जो है उनका अपनी लाइफ का जो उनका बचपना जो जहाँ पे बीता हुआ था वहां से एसोसिएटेड रहा है. So what I want to say, what I want to tell you, when you come to know about the title of the novel, you find that the title is highly significant. The title is very important. Why the title is very important? Because ultimately it tells that the novel or the people who are here, means characters who are mentioned in the novel, they are not such people whom you find or whom you see in city area, but ultimately living city life, living city culture, living city people. Hardy wants to tell how the people of the village area are. This is why he has presented the particular life which we see in city area, the people whom we find, the people whom we interact, the people whom we face in our daily life, especially living in city area. वहाँ का जो लाइफ है वो क्या है, वह तो वहाँ पे मैडिंग क्राउड है, वहाँ पे जो है द हाउ द पीपल आर मैडिंग क्राउड है. लेकिन यहाँ पर जो पीपल है वो मैडिंग क्राउड के लोग नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि उस मैडिंग क्राउड से अलग आपको मैं एक दूसरी जिंदगी दिखाना चाहता हूँ जो गांव में पाई जा रही. गांव का तस्वुर उन्होंने किया, गांव की एक उन्होंने कल्पना की, एक उसको उन्होंने खूबसूरती के साथ सजाया, और उन्होंने गांव की उस ब्यूटी को सजाने के लिए, गांव की उस खूबसूरत जीवन को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए. वो तो बात नेचुरल सी है कि स्टोरी होगा, इवेंट होगा, कैरेक्टर होगा.
उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए। तो एक तो आपको टाइटल की बात मैंने आपको बता दिया कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रेस एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल ऑफ दिस नॉवेल इज कि Hardy does not have any intention to tell the people who are living in city area, but Hardy wants to tell about the people who are living in village area. लेकिन जब हार्डी सिटी से विलेज की ओर शिफ्ट करते हैं, वहां की रूपरेखा, वहां की जीवन, वहां का कल्चर, वहां का एटीट्यूड हम लोगों के सामने ले करके आते हैं, तो हार्डी ने ये दिखाने की कोशिश की कि द प्रॉब्लम विच वी फाइंड इन सिटी एरिया, द सेम प्रॉब्लम वी आर फाइंडिंग हियर, the same problem we are finding in village area also. The people, means the people who are living in village area, whom we call that they are the humble people, they are generous people, they are kind hearted people, they are benevolent people. तो उन्होंने देखा नहीं, ऐसा नहीं है। शहर की जो जो आबो हवा है, या शहर का एक तरह से जो हम ये कहें कि वहां पे जो पैरासाइट है, या शहर का जो अपना एक कल्चर है, वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे पांव पसार रहा है, या यू कैन जस्ट से कि वह धीरे धीरे जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, गांव में दर्ज करा रहा है। और वही सेम कल्चर, वही सेम एटीट्यूड वहां पे देखने को उनको मिलता है। वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमन रिलेशनशिप होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा, इसीलिए उस गांव को, शहरों को छोड़कर गांव की तरफ आए। हार्डी का पर्पस यही था। बट व्हेन ही लेफ्ट द पीपल हु आर लिविंग इन सिटी एरिया, a city life, a city culture, and just used his pen, used his pen and the magical words which he has to tell the lifestyle of the village people. He found that there is no difference, there is no big difference between city life and you can say village life. ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया हुआ है। वहां पर भी रिलेशनशिप में ब्रेकिंग थी, यहाँ पर भी रिलेशनशिप में ब्रेकिंग है। वहां पर भी इंसान रो रहा था, यहाँ पर भी इंसान रो रहा है। वहां पर भी चीख पुकार रही है, वहां पर भी एक तरह से रिश्तों का गला घोटा गया, यहाँ पर भी रिश्तों का गला घोटा गया। वहां पर इलिजिटिमेट रिलेशनशिप रहा, यहाँ पर भी इलिजिटिमेट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी केमिस्ट्री लाइफ की है, जो एक इंसान, जब दो इंसान मिलते हैं, चार मिलते हैं, छह मिलते हैं, तो वो लाइफ का जो स्टेन है, जो पेन है, या जो आप कह सकते हैं कि एक हैरेसमेंट है, जो प्रिजुडिस है, वी फाइंड दैट थिंग, वी कैन जस्ट सी, वी फाइंड दैट थिंग। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अल्टीमेटली द प्रॉब्लम्स, द थिंग्स which were faced by the people living in city area, you will come to know कि those things were also found, या those things were also faced by the people living in village area, उनके द्वारा भी उसको वो किया गया। so what I want to say, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वी शुड गो विद दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हमें 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 कोशिश करना चाहिए समझने के लिए कि हार्डी ने जो बताया है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज आवर लाइफ। अगर मैं कहूँ फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ऐसा नहीं, यह कोई फिक्शन है। far from the madding crowd where you don't find angel, you don't find Satan, you don't find God, you don't find ultimately supernatural character. In far from the madding crowd, you and I are there. You can see yourself, you can see myself, या I can see my own self. You will come to know कि चाहे जो भी कैरेक्टर होगा, गैब्रियल ओक होगा, सर्जेंट ट्रॉय होगा, बोल्डूड होगा, और बातिशेबा होगी, उसके बाद फैनी ब्राउन पर, जो भी कैरेक्टर रहा है, उन कैरेक्टर को आप देखेंगे तो रियली ऐसा लगता है कि दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इन दिस प्ले, इन दिस नॉवेल, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड इन्वायरमेंट। एक पॉइंट आपको जो नोट करना है, इस नॉवेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, वो है इन्वायरमेंट की बात की गई है। इस नॉवेल में जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, वो कौन सी चीज दी गई है, लव को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर के बात कही गई है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, उस माहौल और प्लस वहां का लव, जो रिलेशनशिप है, वो कैसा है, वो कैसे करवटें बदलता है, और इंसान कितना चालाक होता है, अपने फायदे के लिए कितने रंग बदलता है। इन बदलते हुए रंगों में इंसान की कहीं पे अस्मिता खो तो नहीं जा रही है, इसकी तलाश जो है रही थी। अगर देखा जाए इस नावल में, हार्डी ने इसकी तलाश की है। और इसकी तलाश में आप देखेंगे, जब उसकी ये तलाश करते हैं तो तीन मेल नजर आते हैं, और उन तीन मेल का अलग अलग कैरेक्टर होंगे, वे अलग अलग नेचर के हैं।
तो जो डिफरेंट नेचर है, उस डिफरेंट नेचर को लेकर के बात की जाएगी। गैब्रियल ओक का नेचर अलग है, सर्जेंट ट्रॉय का नेचर अलग है, बोल्डूट का नेचर अलग है, बाथशेबा जो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाथशेबा, और सबसे अपीलिंग कैरेक्टर है, सबसे अपीलिंग कैरेक्टर पूरे नॉवेल की है, वहां पर है। तो हार्डी के जमाने में जो वीमेन थी, जो फीमेल कैरेक्टर थी, उनको कैसे देखा गया, उनको कैसे प्रेजेंट किया गया, हम इस पर भी बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो, स्पेशली व्हेन यू गो विद दिस नॉवेल, तो ये नॉवेल आपकी जिंदगी का आईना है। इस नॉवेल में आपके जज्बात है, इस नॉवेल में आपकी इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स है, रिश्तों की कद्र है, और तोड़ते हुए रिश्तों को बहुत बारीकी से दिखाया गया कि कैसे रिश्ते टूटते हैं। और रिश्तों रिश्तों के टूटने में दो चीजें आ रही है, एक तो प्राइड आ रहा है, दूसरा ईगो आ रहा है। तो हार्डी ने ये भी बहुत अच्छे ढंग से, वेरी ब्यूटीफुली ही हैज प्रेजेंटेड कि हाउ आर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू ब्रेक, कैसे हमारे संबंध टूट रहे हैं या टूटने जा रहे हैं, उन्होंने उसको दिखाया है। और जब आप देखेंगे कि इंसान एक समय इतना चालाक हो सकता है और एक इंसान इतना मजबूर भी हो सकता है, दोनों चीजें, द मैन कैन बी मतलब सो क्लेवर यू कांट बिलीव कि व्हाट अ स्ट्रेटेजी अ मैन अडॉप्ट टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए जब वह पाप की दुनिया में फंसता है, पाप के दलदल में फंसता है, तब वह अपने आप को बचाने के लिए कितनी हरकतें करता है, कितने रास्ते आजमाता है, इसको भी हार्डी ने दिखाने की कोशिश की है। तो मैन को पढ़ना, मैन के नेचर को पढ़ना, और वह जो मैन है, जो वह मैन का नेचर है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे समाज में पाए जाते हैं। तो हार्डी ऐसा नहीं कि किसी प्लानेट से लाते हैं, कोई एलियन की बात करें, किसी दूसरे ग्रह की बात करें, नो नॉट एट ऑल। मैरिज हमारी सोसाइटी में होती है, रिश्ते हमारे समाज में टूटते हैं, हम जो है लव और इमोशन में बंधते हैं, फिर उस लव और इमोशन को हम कितना तरजीह देते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर कैसे हम उसको तोड़ देते हैं, इन सारी चीजों को बखूबी जो है हार्डी ने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन हार्डी की एक खासियत, एक कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत प्यारी है, कि उन्होंने जो पूरे नावल की सेटिंग जो वेसेक्स में की है, बहुत ही ब्यूटीफुली ढंग से उन्होंने दिखाया। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि इट्स द स्टोरी ऑफ अ बिजनेसमैन, इट्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज लिविंग इन सिटी एरिया, जिसके पास जेड स्क्वायर है, जिसके पास बिग बाजार बाजार है, या जिसके पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल लाइफ से बहुत दूर जा करके, सिटी लाइफ से बहुत दूर जा करके, सिटी कल्चर से बहुत दूर जा करके, हार्डी ने एक खूबसूरत जो है, अगर मैं कोई एक खूबसूरत माहौल में, इन अ वेरी ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट, ही हैज प्रेजेंटेड दिस रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट रॉय, बोल्ड वुड, और जो और भी माइनर कैरेक्टर्स आते हैं। तो इन्हीं चार कैरेक्टर को लेकर के हमें आपसे बात करनी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, जो पूरे नावल को पढ़ने के बाद जो समझ में आता है, कि यह जो नावल है, यह आपकी कहानी है, यह मेरी कहानी है, और यह कहानी कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर की कहानी है। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जज्बात हैं, और जज्बातों में ये चीज देखने की कोशिश की गई है कि इंसान की का इम्पोर्टेंस किस लिए है, इंसान का क्या वह अपनी कोई आइडेंटिटी बनाता है, या जब वह आइडेंटिटी बनाने के लिए निकलता है तो गलतियां तो कहीं नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि अपनी पहचान के लिए आप दूसरे की पहचान को मिटा तो नहीं रहे हैं, या अपनी आइडेंटिटी के लिए कोई आप गलत फैसला तो नहीं ले रहे हैं। आज वह आपको आइडेंटिटी मिल जाए, फिर कल 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद, दैट आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी स्नैच्ड, दैट आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी सप्रेस्ड बाय समवन। ये चीज बातशेबा के साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जितनी भी चीजों को लेकर के हम आपसे बात कर रहे हैं, या जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आता है। वह चीज क्या आता है कि क्या कोई वुमेन इंडिपेंडेंट हो सकती है, यह एक बड़ा पॉइंट है। कैन अ वुमेन बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इन टेकिंग डिसीजन, स्पेशली कैन शी चूज इन विक्टोरियन एरा, कैन शी चूज हर हर शूटर, उस क्या वह अपने शूटर को, अपने लाइफ पार्टनर को खुद से चूज कर सकती है? अगर वह खुद से चूज कर रही तो क्या वह गलती तो नहीं कर रही है? कैन शी बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? बातशेबा यह दो चीजों की प्रतीक है। बातशेबा इज नॉट ओनली अ वुमन, but Bathsheba is an independent woman. She is independent financially, and she is independent in choosing her suitor.
SUITOR, हर लाइफ पार्टनर मीन्स हर हस्बैंड, उसको चूज करने में। तो यह फ्रीडम जो दिया गया है, यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डू यू फाइंड दिस फ्रीडम इन विक्टोरियन इरा? क्या विक्टोरियन इरा का जो समाज था, क्या यह रियली में वैसे ही था? क्या विक्टोरियन इरा का जो सोसाइटी था, क्या रियली में उसमें औरतों की इस तरह के राइट्स दिए गए थे, इस तरह के अधिकार दिए गए थे जो हार्डी हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जिस नावल को हम इतना इंटरेस्ट के साथ, द पर्टिकुलर नावल विच वी आर स्टडिंग, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको इस तरह की चीजें देखते हैं? दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या गिव मी टाइम ओनली फॉर 1 मिनट। सो आई वॉज टेलिंग यू कि जो हमारे रिलेशनशिप है, जो एक जमाना रहा है विक्टोरियन एज का, उस विक्टोरियन एज में कि किस हद तक लाइफ रही होगी, कैसे, और वो जो सोसाइटी थी और जो जीने की जो कला लोगों में थी, उस कला में कौन कितना माहिर है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई कोई ऐसा डिसीजन लेने में फेल तो नहीं हो जा रहा है? हार्डी ने बाथशेबा जो कैरेक्टर चुना है, उसके पीछे मकसद उनका यही था कि बाथशेबा जिस हिसाब से जो है इंडिपेंडेंट लेडी है, और वह इंडिपेंडेंट केवल फाइनेंशियली, मैंने बताया कि नहीं, कि ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट है, पैसा उसके पास है, लेकिन वह जो है क्या है, डिसीजन मेकर है। शी टेक्स डिसीजन कि whom she has to love, whom she has to marry, दैट इज द पॉइंट। तो वहां पे हार्डी ये दिखाने की कोशिश करते कहीं उसका डिसीजन गलत तो नहीं रहा है, और कितनी सारी चीजें उसके साथ आती है, कितना सारा प्रॉब्लम उसके साथ होता है। और दूसरा चीज, हार्डी ने यह दूसरी चीज दिखाई है। इंडियन मूवी में ये दिखाया जाता है कि इंडियन मूवी में यू विल कम टू नो कि एक हीरोइन है, बट अल्टीमेटली देयर आर द टू हीरोज whom they want to marry या whom they want to love। बट यहाँ पर एक हीरोइन है और थ्री शूटर्स है। गैब्रियल ओक है, सर्जेंट रॉय है, बोल्डवुड है। गैब्रियल ओक, सर्जेंट रॉय, बोल्डवुड। मैंने नोट्स आपको भेजा पीडीएफ फाइल, यू विल गेट देयर, कि वहां पे ये सारे नाम आएंगे एंड यू कैन जस्ट रिमेंबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चीजों को समझ लें। तो मेरा जो बताने का मकसद है वह केवल इतना है कि व्हेन यू गो विद दिस कैरेक्टर, स्पेशली बाथशेबा, यू विल कम टू नो कि ऐसा लगेगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, खासकर विक्टोरियन सोसाइटी में जिस हिसाब से दैट वाज द कंडीशन ऑफ द वीमेन, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर if anyone talks about in modern era or in modern age, we can believe that undoubtedly freedom has been given, rights have been given, but when you talk about feminist perspective, तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में कहीं पर भी बातशेबा उस जमाने में तो नहीं हो सकता था इतना राइट, जो जिस हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि नावल का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, नावल में इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नावल में लव बहुत इंपॉर्टेंट है, और नावल में जो है रिलेशनशिप, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस ह्यूमन रिलेशनशिप, उसके नेचर को, उसकी चीजों को लेकर के बात कही गई है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपसे शेयर किया, या मैंने आपको बताया कि आपको अगर नावल को समझना है तो आपको इसको बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, इसकी इसकी चीजों को समझना पड़ेगा, और इन सारी चीजों को इसलिए लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देन यू विल कम टू नो कि रियली वेयर द ब्यूटी ऑफ द नावल इज फाउंड, नावल की ब्यूटी है कहाँ पर। इस तरह की चीजें आप देखेंगे। इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं आपसे बात करूं, तो आई हैव दिस पेज एंड यू कैन जस्ट सी कि जो नावल है, नावल में एक कैरेक्टर है जिसका क्या नाम है, देयर इज अ कैरेक्टर इन द नावल, एंड जो सबसे पहले कैरेक्टर को हम लेकर बात कर रहे हैं वो गैब्रियल ओक है। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो गैब्रियल ओक, GABRIEL, गैब्रियल ओक। जो गैब्रियल ओक है, वो जो है आपका क्या है कि गैब्रियल ओक, यू विल कम टू नो कि वो हीरो ऑफ द नॉवेल, अगर इफ आई यूज द वर्ड, दैट इज द हीरो ऑफ द नॉवेल। दो यहाँ पे नॉवेल में हीरो का उतना रोल नहीं है जितना कि बादशेबा का। अगर कभी एक क्वेश्चन आता है कि नावल की लीडिंग कैरेक्टर कौन है, नावल का प्रोटेगनिस्ट कौन है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, यू विल कम टू नो कि बादशेबा है। बादशेबा से बड़ा कोई कैरेक्टर नहीं है। यह हार्डी की खूबी थी कि उन्होंने एक फीमेल कैरेक्टर को, जब फीमेल पर कोई लिखना नहीं चाहता था, उतना बात नहीं करना चाहता था, तब हार्डी ने फीमेल कैरेक्टर को इतना, इस नावल में इतना आगे बढ़ाया है, और उसको इंडिपेंडेंट दिखाया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिखाया,
और एंड शी हैज राइट टू चूज हर लाइफ पार्टनर। ये चीज दिखाना बड़ी बात होती है। या तो ये काम किया गया, या तो अगर आप देखेंगे तो कौन दिखाता है जाकर के प्राइड एंड प्रिजुडिस में, जेन ऑस्टिन। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये एक बहुत बड़ा आर्ट था कि इन विक्टोरियन इरा सच अ टाइप ऑफ कैरेक्टर हैज बीन प्रेजेंटेड, who has right, who is independent and who has right to choose her life partner and economically she is strong। लेकिन इतना सब होते हुए भी उसके साथ गलत कितना होता है। आप ये सोचिए कि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि किसी महिला को या किसी भी आदमी को अगर आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया जाए, उसको राइट्स दे दिए जाए, तो वह काफी हद तक क्या होती, स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन हार्डी ने यहाँ पर इस पर इनडायरेक्ट वे में अटैक किया। उन्होंने कहा कि उसको पैसा भी दिया गया, उसके पास राइट्स भी है, लेकिन उसका डिसीजन गलत था। और अनडाउटली हम लोग इस सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे या लोग जो है उनके पास, उनके माँ बाप के पास पैसा है, माँ बाप भी बहुत ओपन माइंड के हैं, लेकिन जो है लाइफ पार्टनर को चूज करने में वो गलती कर जाते हैं। लाइफ पार्टनर उनसे बहुत सारा चीज मतलब छुपाते हैं, झूठी बात, तमाम उनकी रॉन्ग बैड हैबिट्स होती है, उसके बारे में पता नहीं चल पाता। बाद में पता चलता है कि लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। हार्डी ने इस कैरेक्टर के मामले में ये बात बहुत बेहतरीन रखती, इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर ही हैज प्रेजेंटेड बाथशेबा एंड टोल्ड कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अनडाउटली यू आर an independent character, financially you are strong, you have right to choose your husband, you have right to choose your life partner, but except it you commit some mistake, कुछ गलतियां आप कर जाते हैं। तो एक तो बादशेबा का कैरेक्टर वो अपनी जगह है, लेकिन अगर बादशेबा के बाद कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा अपील करता है तो वह कौन सा कैरेक्टर है, गैब्रियल ओक, GABRIEL, गैब्रियल OAK। यू विल कम टू नो कि अगर कोई कैरेक्टर सबसे ज्यादा आपको बादशेबा के बाद अपील करेगा तो गैब्रियल ओक है। और गैब्रियल ओक आपका क्या हीरो है, वह एक जो है इफ आई से कि फार्मर है, पीजेंट है। क्योंकि जब विलेज लाइफ की बात की जा रही है, जब विलेज एरिया की बात की जा रही है, तो उसमें विलेज से ही रिलेटेड सारी चीजों को बताया जाएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू कांट फाइंड एनी कैरेक्टर की ही इज द ओनर ऑफ बिग बाजार और जेड स्क्वायर, या ही इज नॉट टेलिंग अबाउट कानपुर, या ही इज नॉट टेलिंग अबाउट मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी और सिटी लाइफ और दिल्ली or you can say any other cities. So you will come to know ki what does he tell? He tells about the village area. He tells about the rustic people. He tells about the people who are living in remote areas, the countryside people. He's telling about their life, their way of living, manner, attitude, and these things you find. तो जब आप इस कैरेक्टर को देखेंगे तो यह कैरेक्टर इतना सिंपल है, इतना हम्बल है, इतना जेनरस है, इतना बेनिवोलेंट है, इतना काइंड हार्टेड है कि नो वन कैन बिलीव। एंड इवन ही लव्स बादशेबा, बादशेबा को प्रपोज भी वह करता है, बट बादशेबा डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस मैन। वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इतना काइंड हार्टेड आदमी जो सबसे पहले बादशेबा की जिंदगी में आता है या बादशेबा को जो प्रपोज करता है, बादशेबा उसको डिनाई कर देती है कि आई कांट मैरी, बिकॉज बादशेबा इकोनॉमिकली क्या थी, वह स्ट्रांग थी, इकोनॉमिकली वह क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। सो यू विल कम टू नो कि बादशेबा का ये एक रॉन्ग, मैं नहीं कहूंगा रॉन्ग डिसीजन था, दैट वाज द लाइफ ऑफ बादशेबा, लेकिन जिस हिसाब से नावलिस्ट ने बताया कि यह बादशेबा का क्या था, रॉन्ग डिसीजन था। गैब्रियल ओक को छोड़ना, यह बादशेबा ने बड़ी गलती की। गैब्रियल ओक क्या था कि इकोनॉमिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, एक समय था मजबूत था, बहुत अच्छी कंडीशन में था, लेकिन उसकी जो उसका फार्म हाउस था, जो उसके यहाँ के एनिमल थे, खासकर जो उसकी शीप वगैरह थी, वो एक कुएं में गिर जाती है, तो वो काफी पुअर हो जाता है। ऑल दिस थिंग्स बी फाइन, बट लेटर ऑन यू विल कम टू नो कि बादशेबा का जो डिनाई है कि मैं आई विल नॉट मैरी गैब्रिएलो, या आई डोंट लाइक गैब्रिएलो, या अगर लाइकिंग भी है तो वो एक अलग चीज है, मैरिंग विद एनी पर्सन इज अनदर थिंग। तो जो उसका डिसीजन था, ये बाद में ये पता चलेगा कि वह जो है रॉन्ग डिसीजन था, और यही आदमी लास्ट में उसका हस्बैंड होता है। लास्ट में यही गैब्रियल ओकी उससे मैरिज करता है। और लेकिन इस मैरिज से पहले दो और मैरिज होती है और अफेयर भी होता है, यू विल कम टू नो। तो मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया, वह कौन सा बताया, गैब्रियल ओक। और को रिलेट करके मैं चल रहा हूँ, वह को रिलेट मैंने क्या किया, बादशेबा को मैंने को रिलेट किया। तो अगेन आई वांट टू टेल यू कि गैब्रियल ओक वह हीरो ऑफ द नॉवेल है। ही इज अ फार्मर, शेफर्ड, और बादशेबा फर्स्ट स्वीटर है, बादशेबा के पहले स्वीटर थे। स्वीटर का मतलब कि जिन्होंने प्रपोज किया कि आई वांट टू मैरी या आई वांट टू बी योर हस्बैंड। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे बादशेबा का कद बहुत बड़ा है, बादशेबा के कद के आगे
ना तो गैब्रियल ओक टिक पा सकते हैं, ना सर्जेंट ट्रॉय टिक सकते हैं, और ना ही विलियम बोल्डवुड टिक सकते हैं, क्योंकि उनको इतना इंपॉर्टेंट दिखाया ही नहीं गया नॉवेल में, या अगर उनके पास रहा होगा चीजें तब भी नहीं रही होगी। और इसके बाद बाथशेबा की जिंदगी में जो एक और आदमी आता है वो है क्या है, वो सर्जन फ्रांसिस फ्रैंक ट्रॉय है। अनदर मैन हु बिकम द शूटर ऑफ बाथशेबा, दैट इज सर्जन फ्रांसिस फ्रैंक ट्रॉय। सो यू विल कम टू नो कि जो सर्जन फ्रांसिस फ्रैंक ट्रॉय है वो कितना क्लेवर है। एक एक तो इतना जेंटिल आदमी दिखाया गया, काइंड हार्टेड, बेनिवोलेंट, जिनरस, हम्बल, उतना, और दूसरा इतना ज्यादा क्लेवर है कि अल्टीमेटली ट्रूथ लाइज बिहाइंड कर्टेन। द पार्टिकुलर फेस ऑफ दैट मैन, स्पेशली सर्जन ट्राय का जो चेहरा आपको देखने को मिलेगा कि हैंडसम यंग गाय है, हैंडसम यंग गाय, उसको देख करके बाशिबा अट्रैक्ट होती है, उसके पास पैसा भी है, जो कुछ भी है, और उससे मैरिज कर लेती है। लेकिन रिमेंबर दैट कि उसका जो कैरेक्टर है वो इतना इतना बैड है, इतना बुरा कैरेक्टर, यू कांट बिलीव कि बादशेबा से मैरिज करने से पहले बादशेबा के यहाँ एक नौकरानी रहती है जो कि आर्फंड गर्ल है, उसका उसके साथ इलिजिटिमेट रिलेशनशिप है, उसका उसके साथ इलिजिटिमेट किसका, सर्जेंट ट्राय का। तो सेकंड कैरेक्टर जो मैं बात कर रहा हूं वो कौन है, सर्जेंट ट्रॉय, जिनका पूरा नाम है सर्जेंट फ्रांसिस फ्रैंक ट्रॉय। ऑलरेडी आई सेंड यू पीडीएफ फाइल, यू विल गेट ऑल दीज पॉइंट्स। वो जो आदमी है वह जो है एक तरह का सेकंड शूटर है बादशेबा का। फाइनली बादशेबा की मैरिज उसी से ही होती है। लेकिन यू विल कम टू नो कि व्हाट हैपेंस, उसका जो कैरेक्टर है वह अच्छा नहीं है। बाशेबा से मैरिज करने से पहले उसका इलिजिटिमेट रिलेशनशिप एक आर्फन्ड गर्ल के साथ है, और जब वह उसके साथ रिलेशन बनाता है तो उसको एक इलिजिटिमेट बेबी होती है। और जब वह उस गर्ल का जो नाम है फैनी रॉबिन, फैनी रॉबिन के साथ उसका इलिजिटिमेट रिलेशनशिप है। जब फैनी रॉबिन ये कहती है कि मुझे आपसे मैरिज करना है, तो वो प्लान बनाते कहीं किसी चर्च में चलना है। और जब ये बात होती है तो थोड़ा सा क्या होता है, हॉट टॉक होता है या जो भी प्रॉब्लम होगा, वह क्या करता है, उसको छोड़ देता है फैनी रॉबिन को। और जबकि फैनी रॉबिन, यू विल कम टू नो कि फैनी रॉबिन उसके एक तरह से अगर कहा जाए कि उसका बच्चा जो है फैनी रॉबिन के पास है, लेकिन फिर भी वो फैनी रॉबिन से क्या करता है कि मैरिज नहीं करता। यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक कैरेक्टर पर, मेल कैरेक्टर पर, कि मेल जो होते हैं कितना मिस्चीवियस होते हैं, या कितना ज्यादा जो है डेडली होते हैं, कितना ज्यादा चीटर होते हैं, कि हाउ मच दे चीट। बट दो कैरेक्टर मेल का है, एक तो गैब्रियल ओक का है जो हम्बल्ड है, और दूसरा सर्जेंट ट्राय का है। और वहां से वह भाग जाता है, और फिर आकर के क्या करता है, किसको प्रेम जाल में फंसाता है, बादशेबा को, बादशेबा से मैरिज करता है। जब बादशेबा से मैरिज करता है तो लेटर आने जाकर के पता चलता है बादशेबा को कि ऑलरेडी इसका तो इलिजिटिमेट रिलेशनशिप है फैनी रॉबिन के साथ। और फैनी रॉबिन गरीबी में मर जाती है, उसको खाना देने वाला कोई नहीं है, उसका अपना इलिजिटिमेट बेबी है, उसको कोई खाना देने वाला नहीं है, वह मर जाती है। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्जेंट ट्रॉय मर्डरर है, अ क्रूएल फिगर, अ क्रूएल मैन, अ स्पॉट ऑन सोसाइटी, अ मैन हु इज लिविंग इन आवर सोसाइटी, अ मैन हु माइट बी आवर नेबर, अ मैन हु माइट बी योर नेबर, अ मैन हु माइट बी योर फ्रेंड, अ मैन हु माइट बी माय फ्रेंड, जो मेरा और आपका दोस्त हो सकता है। सच अ पीपल आर फाउंड इन आवर सोसाइटी। We find so many cases, we find so many things in our society ki how the people just means make the relationship, live with relationship है, then they leave, उनको छोड़ देते हैं, तब मामला केस कहीं पे जाता है। इन मेनी केसेस, अभी कल जो है जो केस सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया एमजे अकबर को लेकर के और जो पत्रकार थी उसको लेकर के, कि उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार पर तवज्जो नहीं दिया जा सकता, उसको ये नहीं कहा जा सकता, गरिमा एक अलग चीज है लेकिन प्रतिष्ठा एक अलग चीज है। प्रतिष्ठा के सारे किसी की गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ द अपेक्स कोर्ट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यहाँ पर इस आदमी ने क्या किया, यहाँ पे इस आदमी ने अपनी प्रतिष्ठा का फायदा उठा करके फैनी रॉबिन की गरिमा को चोट पहुंचाया, और फैनी रॉबिन को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, और एक बच्ची को जन्म देना पड़ा जिस बच्ची का कोई गार्जियन नहीं है। और उसके बाद इस आदमी ने दूसरे से जाके रिलेशनशिप नहीं बनाया बल्कि मैरिज किया, उसको भी चीट किया। तो यहाँ पे एक गलती का एहसास होता है कि जो बादशेबा अपने सामने इतना हम्बल, जनरस और
इतने गुड कैरेक्टर के आदमी को देखी थी, गैब्रियल ओक को, वह उसको छोड़ करके एक ऐसे आदमी के फंदे में आती है, ट्रैप में आती है जो क्लेवर है, एक ऐसा आदमी जो ब्लैकमेल, अगर मैं वर्ड यूज करूं ब्लैकमेल करने वाला ही, जैसा जिसका अपना अलग रिलेशनशिप है लोग से। उसके बाद क्या होता है, कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि बीच में वो अपने आप को बचाने के लिए भाग जाता है, और फिर ये लगता है कि वह जो है कहीं डूब करके मर गया। कौन? गैब्रियल, ये सर्जेंट ट्रॉय। इट सीम्स दैट ही इज ड्रोन्ड समवेयर, वह डूब करके मर जाता, ऐसा आता है। अब उसके बाद देर इज नो वन इन द लाइफ ऑफ, देर इज नो वन इन द लाइफ ऑफ बाशेबा। बाशेबा के लाइफ में अब तीसरा आदमी आता है, एंड हु इज दैट थर्ड मैन? दैट थर्ड मैन इज विलियम बोल्डवुड। और विलियम बोल्डवुड उससे प्रॉमिस करते हैं, या आई विल मैरी यू, उससे प्रॉमिस करते हैं मैं मैरिज करूंगा। तमाम चीजें होती हैं, और एक जगह पे आ, ऐसी ही क्रिसमस पार्टी चलती रहती है। उसी क्रिसमस पार्टी में आप देखेंगे कि सर्जेंट ट्रॉय जो है, उसका उसका एक तरह से अपीयरेंस होता है, वह जो है आ जाता है फिर से। तो इसका मतलब सर्जेंट ट्रॉय डूबा नहीं था, वह बचा हुआ था, कहीं छुपा रहा होगा, जो भी उसके साथ हुआ। सर्जेंट ट्रॉय फिर आता है। जब सर्जेंट ट्रॉय बीच में आता है, किसके बीच में आता है? नव बादशेबा और बोल्डूड। क्योंकि अब बोल्डूड माइंड मेकअप कर लिया कि बादशेबा इज माइन, बादशेबा मेरी है। जैसे ही वह सर्जेंट ट्रॉय को देखता है तो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी पिस्टल से उसको गोली मार देता है। किसको? सर्जेंट ट्रॉय को। अब आप ये समझिए कि एक तो गोली से मर गया, लेकिन जो दूसरा मर्डरर है उसको भी क्या हो जाता है? डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट। तो अल्टीमेटली बादशेबा ने जिसको चुना, गैब्रियल ओक को चुना, सॉरी नॉट गैब्रियल, सर्जेंट ट्राई को चुना था। सर्जेंट ट्राई वाज मर्डर्ड बाय हिम, सर्जेंट ट्राई वाज मर्डर्ड बाय बोल्डवुड, एंड द मर्डर वाज वेयर? द मर्डर वाज बिहाइंड द बार, वो जेल के पीछे। डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट, लास्ट में देखा जाता है नहीं, लाइफ इंप्रिजनमेंट में वो तब्दील हो जाता है। एक आदमी अभी भी बचा हुआ है, वह कौन है? गैब्रियल ओक। जेंटिल, काइंड हार्टेड, बेनिवोलेंट, लवली, अट्रैक्टिव, सिंपल मैन हु इज ऑनेस्ट फ्रॉम हार्ट एंड सोल। वहां से हर लेवल पे गैब्रियल ओक जो है बादशेबा की मदद करता है। अब नाउ बादशेबा हैज नो चॉइस, बादशेबा को अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करनी पड़ती है जहां वह छोड़ के गई रहती है। तो ये चीज इंडिकेट करता है, जो भारतीय परिवेश में, इंडिया का इन्वायरमेंट में या दुनिया के इन्वायरमेंट में एक कॉमन बात नजर आती है कि हमें जब शुरू में रिश्ते मिलते हैं तो कहीं पर घमंड में, कहीं पर गर्व में, कहीं पे अपनी शान शौकत में, कहीं पर अपने धन के जो है के घमंड में आकर के हम तमाम अच्छे रिश्तों को ठुकरा देते हैं। बाद में या तो हमें रिश्ते नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो गलत मिलते हैं। एक उन्होंने यहाँ पर एक 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 मैसेज देने की कोशिश की, जो मैंने बताया कि रीजनल नॉवेल की जो भी उन्होंने बताते हैं उसकी प्रॉब्लम को, वो उसको जनरलाइज कर देते हैं। ये जो इतनी घटना घटी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इट आकर्स ओनली इन यूरोप, इट इट डजंट आकर इन इंडिया। इंडिया में नहीं होता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह की प्रॉब्लम इंडिया में भी आपको हमारे आपके घरों में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल एरिस्टोक्रेटिक लाइफ की बात है। सो मेनी प्रॉब्लम्स वी फाइंड की इन आर सोसाइटी, इन आर डेली लाइफ। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि शायद जो हार्डी यहाँ पे कमेंट करना चाहते हैं वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर के। उन्होंने शायद, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शायद वो ऐसा जो है कहना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं कि जो बादशेबा का डिसीजन है वह लव मैरिज के साथ है ही है, लेकिन जो उसको राइट दिया गया कि यू हैव टू चूज योर लाइफ पार्टनर, ये शायद इंडिकेट करता है कि जो उसने जो है गलती की, वह एक बड़ी गलती की, इसलिए कि जो माँ बाप का जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, और जिस अनुभव से वे किसी भी चीज को देखते हैं या अरेंज करते हैं या नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, वो शायद जो है अभी उस उम्र पे बादशेबा नहीं पहुंची थी। बादशेबा ने जो डिसीजन लिया, या उसका अपना डिसीजन था, उसको राइट भी है, उसके राइट्स को क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद हार्डी ये दिखाना चाहते हैं कि बादशेबा का जो डिसीजन था इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज, या इंडिपेंडेंट कैरेक्टर फिनेंशियली एंड डिसीजन की शी हैज टू टेक डिसीजन, ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। तो मैंने आपको विलियम बोल्डूड के बारे में बताया, मैंने आपको सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बताया, मैंने आपको बाशेबा के बारे में बताया, मैंने आपको गैब्रियल ओक के बारे में बताया, फैनी रॉबिन के बारे में भी मैंने बताया कि वह कैसे पुअर आर्फन गर्ल है, कैसे इलिजिटिमेट रिलेशनशिप वो बनाते हैं। इसके अलावा
सम अदर कैरेक्टर्स है, जिसमें एक कैरेक्टर्स है लिडी इस्माल बरी है, बाशेबाज मेड एंड कानफिदा, बाशेबा के बहुत करीबी हैं, उनका नाम है लिडी इस्माल बरी। व्हाट इज द नेम? लिडी इस्माल बरी। दूसरा है जैन कोगैन, ये है फार्म लैब्रर एंड फ्रेंड ऑफ गैब्रियलो, गैब्रियल एक के दोस्त है, गैब्रियलो के साथ काम करते हैं। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, आई हैव सेंट यू पीडीएफ ऑलरेडी बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर, आई हैव सेंट यू पीडीएफ, यू विल गेट दीज मीन्स कैरेक्टर्स, यू हैव टू नोट डाउन, आपको अपनी शीट में अलग से नोट कर लेना है। केनी बाल एक कैरेक्टर है, अ यंग बॉय है हु वर्क्स एज गैब्रियल ओक्स असिस्टेंट, तो गैब्रियल ओक के साथ काम करने वालों में केनी बॉल है, जैन कोगायन है। दिस थिंग्स यू विल फाइंड कि ये सारी चीजें आप पाएंगे, या इन सारी चीजों को आप जो देख सकते हैं या समझ सकते हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नॉवेल इन विच यू फाइंड ह्यूमन नेचर, in which you find the breaking of the relationship, in which you find that how a woman takes a wrong decision and by which she suffers ultimately, I will not say कि throughout the life, बट गैब्रियल ओक से रिलेशनशिप को लेकर के तो वो सफर नहीं करती, सर्जन ट्राय से जैसा रिलेशनशिप उसका है वो बहुत सफरिंग है, पेनफुल है। बोल्डूट के साथ भी जिस हिसाब से है वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एक काइंड और जेंटिल हार्ट एंड माइंड को ठुकरा करके उसने जो जिस हिसाब से लोगों को चुना, वह परहैप्स शी वाज अनेबल टू रीड द नेचर ऑफ द मैन। वही जो कहावत कही गई कि फेस इज नॉट द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, जो चेहरा है वह आदमी के दिल का आईना नहीं होता। तो वो जो बात है वो चीज यहाँ पे नजर आती है कि आप चेहरे से समवन समवन देयर इज अ गाय सम दैट इज यंग स्मार्ट अट्रैक्टिव लवली कलर या फेयर कलर ही है, तो इट डज नॉट मीन कि वह बहुत ही अच्छा होगा कैरेक्टर को लेकर के। तो ह्यूमन नेचर को समझना यह अपने में बड़ी बात है जो यहाँ पे उन्होंने लेकर के बताया। इंडिपेंडेंट होना गलत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने में कहीं आप गर्व में गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे, आप पे घमंड तो नहीं है, यह भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश की कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिए। खास करके अगर आप देखिए डिसीजन में जहां तक बात थी डार्सी और एलिजाबेथ का, जो रिलेशनशिप प्राइड एंड प्रिजुडिस में कई दौर की मीटिंग के बाद वे डिसाइड करते हैं कि हमें एक दूसरे का लाइफ पार्टनर बनना है। तो इस तरह की रिलेशनशिप के सपोर्ट की बात की जा रही है। वहां पर डार्सी भी इंडिपेंडेंट है, एलिजाबेथ भी इंडिपेंडेंट है, दे टेक देयर डिसीजन, ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम है। लेकिन they meet with each other, they try to know ki what's your nature, what's mine, then they come to close, then they decide ki yeah we are able to understand each other, now we are able to just to go, all these things we find। अदरवाइज यू कैन जस्ट को कि पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ इंडिया में कैसी है कि 4 महीने 6 महीने 2 साल 4 साल के बाद हाउ द रिलेशनशिप इज गोइंग टू ब्रेकअप, ऑल दिस थिंग्स हमारे आपके यहाँ हो जाए तो कोहराम मच जाए, प्रॉब्लम हो जाए, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। So we find these things, we just see these things and you can understand it very well. So I hope ki you all have enjoyed this lecture. If you have any suggestion, if you have any comment, you can now ask. Yeah, if you have any question, if you have any query, if you have any comment. जी, प्रोटेगोनिस्ट जो होता है सेंट्रल कैरेक्टर होता है, और वह सेंट्रल कैरेक्टर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। जो सबसे लीडिंग कैरेक्टर होता है वो प्रोटेगनिस्ट होता है, और हीरो का मतलब कि केवल मेल होता है, मेल जो अच्छा हो, जो जो विलेन को जो है एक तरह से चैलेंज करता है। प्रोटेगनिस्ट का अपोजिट एंटागोनिस्ट होता है। पागलों की भीड़ से जो हार्डी का सोचना था वो ये था कि शहर के जो लोग हैं वो लोग जो है बहुत ही मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं, उनकी जो लाइफ होती है उसमें लस्ट होता है, पैशन होता है, रिलेशनशिप को कोई उनके यहाँ तवज्जो नहीं होती है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। और तो उन्होंने कहा कि सच अ पीपल जो है वो क्या है, मैड पीपल है, मैकेनिकल लाइफ जी रहे, दे डोंट हैव टाइम टू गिव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, दे डोंट हैव टाइम टू गिव वैल्यू टू द रिलेशनशिप ऑफ ईच अदर। दिस इज व्हाई ही सेज दैट कि हमें इस तरह की जो लाइफ है, जो सिटी लाइफ है, उससे अलग हट करके एक एक सुकून भरी जिंदगी हम दिखाना चाहते हैं। वहां पे वो ले गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
यहाँ पर भी उसी का असर है, दैट विलेज लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिटी लाइफ, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ठीक, इट्स अ ब्यूटीफुल सजेशन, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पहले भेज दिया करूंगा। एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर सजेशन किसी को? तो आई थिंक कि नाउ वी विल मीट आफ्टर 6, एट 6:15 हम लोग जो है एक ड्रामा को लेकर के डिस्कस करेंगे, या ड्रामा या नावल जो भी होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। और किसका रहेगा वो, दैट्स क्लास ओनली फॉर टीजीटी, या जिनको भी अटेंड करना है गर्ल्स वर्दी के प्ले या नावल को लेकर के डिस्कस करूंगा। एंड रिगार्डिंग दिस क्लास यू कैन सेंड योर फीडबैक। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी जा चुकी है फॉर फ्रॉम द माइडिंग क्राउड से रिलेटेड, जो अभी भेजा गया है, आप जैसे ही समय मिलेगा 15-20 मिनट निकाल करके इसे तुरंत पढ़ लीजिएगा। जो लिखवाया गया हार्डी का, जो अभी भेजा गया है, और जो बात कही गई, ये तो आपको कहानी थी, सुनने मतलब एक अच्छा लग ही रहा होगा कि हाँ कहानी है, सामने पूरी बात हो रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लेक्चर ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो नया चीज आ रहा है वो पीडीएफ भी भेज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा लाइव आकर के बताने में वो आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस करता होगा, ज्यादा एक अच्छा इंप्रेशन डालता होगा, क्योंकि जेस्चर पोस्चर सारी चीजें नजर आती है, तो एक क्लास जैसा लुक आपको समझ में आता है कि हाँ देयर इज अ मैन हु इज स्पीकिंग, फेस रीडिंग, ऑल दीज थिंग्स यू गेट। तो ये चीजें ज्यादा बेहतर आपके लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी जो चीजें आपको बताई गई हैं आप इसको तुरंत का तुरंत, इफ यू हैव टाइम, तो पहला काम ये करिएगा कि फार फ्रॉम द माइडिंग क्राउड पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई चीज मिस नहीं होगा। ठीक, ओ, ओ, वी विल मीट आफ्टर 6:15। एंड आई हैव ड्रॉप्ड मैसेज, मैंने इंडिविजुअली भी भेजा है, ग्रुप पे भी भेजा है, प्लीज कंसीडर और उस पर आप विचार करिए। जी कृष्ण। नहीं मैटर, देखिए मैटर तो कृष्णा जी जितना आपको दिया जा रहा है मेरी तरफ से कोई भी ज्यादा नहीं दिया जा रहा, बल्कि मुझे लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है। और अगर मैं चाहता तो जो मैं अभी आपको बताया, और आप ये सोचिए अगर मैं इस पूरे लेक्चर को लिखवाता तब क्या कंडीशन होती। इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ रहा है। जो उस समय आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतनी ही बातें फार फ्रॉम द माइडिंग क्राउड के बारे में बता रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं, वहां पे वो लिखवाना नहीं है। अब ये वीडियो भी आपके पास पड़ा रहेगा, आपने लेक्चर को सुन लिया तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। इसलिए जो भी मैटर आपको है वो टॉपिक वाइज आप चलिए, जो चीजें जिस दिन पढ़ाई जा रही हैं उस चीज को उस दिन पूरा रिवीजन करने की कोशिश करिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा, सुबह 8 से 9, फिर उसके बाद शाम को, फिर अभी उसके बाद क्लास, फिर केडी सर की क्लास। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि जिस समय आपको इन सारी झंझटों से फुर्सत होगी तो आपके पास केवल रिवीजन का ही तो काम होगा। अभी तो मैं आपको इंगेज किया हूँ, आप खुद से इंगेज है या और लोग कहीं ना कहीं इंगेज है। तो अब इसके लिए क्या है कि जो भी समय आपको मिल रहा है उस समय उस दिन में वही लेक्चर पूरा कंप्लीट करिए जो आपको पढ़ाया गया। अगर आज मैंने आपको सुबह में 3 दिन से हार्डी पढ़ाना है तो आपका काम है केवल हार्डी पढ़ना, इधर उधर और ना जाना, ताकि हार्डी आपका मेरे साथ पैरेलल वे में एकदम से हो जाए। हाँ, फिर उसके बाद जो पहले के लेक्चर हैं, अगर उस पहले के लेक्चर को आपको हफ्ते में 2 दिन मिल जाता है, एक दिन भी मिल जाता है कुछ रिवीजन करने का, एक एक दो दो टॉपिक, तो यू कैन रिवाइज दैट थिंग। उसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं, 24 घंटा ईश्वर ने दिया, उसी 24 घंटे में ही एडजस्ट करना है, अलग से कोई समय नहीं बनेगा। यू हैव टू मेक योर प्लान। आपको प्लान बनाना पड़ेगा ना कि कैसे किया जाए कि हम उस चीज को कवर कर ले। आज आप पढ़ ले रहे हैं, कल जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको जो चीजें आज 70% खर्च करना पड़ रहा है एनर्जी, वो रिवीजन करने में 30% खर्च करना पड़ेगा। दैट विल बी रिवाइज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। तो